प्यारे बच्चों, dear students, we are now in the poem we are now in our English class. Welcome to all, and we are taking the lesson on his blindness written by John Milton. John Milton was a poet from England, born on 1608, and he died on 1674. John Milton was a very talented poet. He wrote a lot of things. Mostly his writing is sonnet. तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम इसको विवेचना इसकी करते हैं जॉन मिल्टन की, जो कि इंग्लैंड में पैदा हुए थे 1608 में और इनकी मृत्यु 1674 में हुई थी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपनी ब्लाइंडनेस अर्थात अंधेपन पर। तो सबसे पहले हम इसको नाउ फॉलो मी व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट इरे हाफ एनी माई डेज in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent. So, dear students, first of all, difficult words, meaning consider, think, ere half my days, premature, wide, broad, talent, knowledge, hide, something hidden, lodged, living अर्थात रहना, यूजलेस बेकार, सोल आत्मा, स्पिरिट, टू सर्व सेवा करना, देयर विथ यहाँ, माई मेकर गॉड, ट्रू माई अकाउंट ऑल माई वर्क मेरा सारा कार्य, returning after death man returns to heaven, that is returning अर्थात मृत्यु के बाद लौटना, chide rebuke डांटना। तो first of all we are going to see this central idea, because central idea is also very important part of the lesson. तो central idea पहले देखते हैं इसका। In this poem, John Milton is saying that he is premature, blind, and this world is like a dark area for him. He is more experienced, so he wanted to serve the God, but he thinks that God doesn't need anyone's work. He doesn't even want gift from men. He also thinks that
No work is needed for God because there are so many messengers, so many workers that are ready to carry out His messengers, to carry out His orders throughout the world. तो प्यारे बच्चों, अब हम इसका रेफरेंस देखते हैं. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. रेफरेंस. These lines have been taken from the lesson on his blindness and composed by John Milton. In this stanza, poet is saying that he is premature blind and he is more knowledgeful now, but he is without light, means he is blind. How can he serve to God? And now we are going to explain in Hindi first and then after English. When I consider, जब मैं ये सोचता हूँ कि किस तरह से मेरी आँखों की रोशनी, लाइट, पहले ही इन हाफ माई डेज, मेरे जीवन के पहले ही, अर्थात मिल्टन 40 साल में अंधे हो गए थे, तो उसकी ओर ये इशारा करते हुए कहते हैं कि मेरी लाइट जो है वो ले ली गई, अर्थात मैं अंधा हो गया और ये संसार मेरे लिए अब एक डार्क है, एक अंधेरा क्षेत्र है, बड़ा सा एक मैदान जैसा रह गया है. और मेरे अंदर जो टैलेंट है, जो योग्यता है, एबिलिटी है, जो मेरी मृत्यु तक हाइट छुपी रहेगी, लॉस्ट विद मी यूजलेस, और वो टैलेंट यूजलेस मेरे लिए है, अर्थात निष्प्रयोज्य है, इस योग्यता का मेरे लिए अब कोई मूल्य नहीं है. तो माई सोल इज मोर बेंट, यद्यपि माई सोल, मेरी आत्मा जो है वो अब ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गई है, अनुभवी ज़्यादा हो गई है, और मैं अच्छे ढंग से ईश्वर की सेवा कर सकता था. तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. इन दीज लाइन्स पोएट इज डिस्क्राइबिंग that when he think about his blindness, he was very sad because this world is totally dark for him and the only knowledge is with him. By that he can serve better to the God, and that knowledge is useless. The poet says that he is more experienced now, and now we are going to take the second stanza of this lesson to serve therewith my Maker and present my true account. ईश्वर के सामने मैं अपना पूरा कार्य जो है वो रख देना चाहता था, एंड प्रेजेंट माई अकाउंट, सारा लेखा जोखा अपने जीवन का मैं ईश्वर के सामने रखना चाहता था, लेस्ट, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर मेरे लौटने पर मुझको डांटे. Poet is saying that he wanted to present all the work of his life so that the God could not rebuke him.
And second, doth God exact day labor light denied? I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. Doth Dutch गॉड एग्जैक्ट? वास्तव में क्या ईश्वर इस अंधेपन में भी ब्लाइंडनेस में भी रात दिन क्या काम की आशा करते हैं, जबकि लाइट इज डिप्राइव्ड, लाइट डिनाइड अर्थात लाइट जो है वो ले ली गई है, छीन ली गई है. लाइट ही इज डिप्राइव्ड ऑफ लाइट. तो उसको क्या ईश्वर उससे कार्य करने की 24 घंटे आशा कर सकते हैं, जबकि उसकी लाइट ले ली गई है, अर्थात ईश्वर ने उसकी रोशनी ले ली है. आई फंडली आस्क, फंडली सो किया यहाँ पर फुलिशनेस, मैं उसको मूर्खतापूर्वक उससे पूछता हूँ, बट पेशेंस धैर्य मुझको ऐसा करने से प्रिवेंट रोकता है, स्टॉप दैट मरमर, उस मरमर को अर्थात कंप्लेन को, मेरी उस कंप्लेन को मेरा धैर्य रोकता है. और ये उत्तर देता है, गॉड डथ नॉट नीड, गॉड को, ईश्वर को किसी कार्य की जरूरत नहीं है. इधर मैन्स वर्क, ना ही किसी के कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट्स, ना ही किसी गिफ्ट की ईश्वर को जरूरत होती है, न किसी अवार्ड्स की जरूरत होती है. हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो अपना बेस्ट बियर अच्छी तरह से, योक माने होता है जुआ, अर्थात जो बैलों वाला जो जुआ होता है. तो यहाँ पर माइल्ड लाइट हल्का, योक जुआ, यहाँ पर जुआ का मतलब है कि थोड़े बहुत जो उसको कष्ट मिलते हैं, पेन मिलती है, उसको जो थोड़ा बहुत व्यक्ति बियर करता है, वो भी सबसे अच्छी सेवा उसकी करता है. दे सर्व हिम बेस्ट, वो भी उसकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं, जो केवल अपने दुखों को बर्दाश्त करते हैं. तो आइए इसको रेफरेंस उसी तरह से रहेगा. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, एंड रेफरेंस में आपको लिखना है कि the writer is saying that how can exact God expect from him that he should work night and day without light, but soon his patience replies that God doesn't need anyone's help, anyone's gift. And now we are going to explain in English. He is very sad. So the writer is, poet is very sad. So he asked a question from the God, how you can expect labor from me, that is blind man. How can you expect a work from a blind man? But soon his patience prevent him complaining, and patience says that God doesn't need anyone's work. God doesn't need anyone's gift,
either, because he is mighty, he can do anything. The man who bears light pain is also a service, also serving to the God. And now we are going to taking the third stanza, and this is the ending stanza. His estate is kingly. His estate means his position is kingly, like a king. He is mighty. Thousands at this bidding speed, bidding orders, and post over land and ocean. ओशन समुद्र में और लैंड में, स्थल में उसकी आज्ञा को ले जाने के लिए हमेशा मैसेंजर्स बिना किसी रेस्ट के, बिना आराम किए हुए दिन रात दौड़ते रहते हैं. दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एट वेट. वेट प्रतीक्षा करना. Stand means standing, waiting, standing and waiting is also a service. तो आप हिंदी में अच्छी तरह से समझ लीजिए. उसकी जो पोजीशन है, उसका जो दशा है, वो एक किंग की तरह है. अर्थात वो उसकी स्थिति राजा के समान है. और थाउजेंड्स मैसेंजर्स, हजारों जो उसके मैसेंजर्स हैं, दूत हैं, वो बिडिंग स्पीड, उसकी आज्ञा को ले जाने के लिए हमेशा दिन रात तैयार रहते हैं. समुद्र से और लैंड तक, अर्थात पृथ्वी से लेकर के समुद्र पर्यंत तक उसकी आज्ञा पालन के लिए हजारों लोग तैयार रहते हैं, बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी आराम के. दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. इसलिए मिल्टन कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी यही सेवा है कि जो केवल उनकी आज्ञा पालन के लिए खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं. ये भी उनकी बहुत बड़ी सेवा है. तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. जॉन मिल्टन इज सेइंग दैट गॉड्स पोजीशन इज लाइक अ किंग. Thousands of messengers are ready to carry out his orders through land and ocean without resting. The man who is standing and waiting for his orders is also doing his service. That's all. Please like this and share it, comment it. Thank you. Thanks a lot.